Hello dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 5. This is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So children, today we are going to start chapter number 17 of your book and the name of the chapter is The Freedom Struggle. So let's start with the chapter. So children, here you can see an exercise is given. Given below are the name of some freedom fighters. Can you unscramble them and write them correctly? So यहाँ पे कुछ freedom fighters के name दिए गए हैं जो unscramble करने हैं आपको और उनको correct order में लिखने हैं. So here you can say the first name is Chandrasekhar Azad. Next is Subhash Chandra Bose. Next, Bal Gangadhar Tilak. Next is Sardar Vallabhbhai Patel. Next, Bhagat Singh. And the last one is Sukhdev. So, children, we have completed this exercise. You have to copy this in your book. Now, let's start with the chapter. After the revolt of 1857. 1857 का revolt हो गया था. उसके बाद क्या हुआ? After the revolt, the rule of East India Company came to an end and India came under the direct control of British Crown. So, East India Company का the end हो गया वहाँ पे और अब इंडिया जो है ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया. India was now ruled by the representative of Queen Victoria, who was declared the Empress of India. So यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रूल किया था इंडिया के ऊपर. फिर दिस रिप्रेजेंटेटिव assumed the office of the Governor General or Viceroy. Lord Canning was the first Viceroy and Mountbatten was the last British Viceroy of India. So Lord Canning जो first Viceroy थे और Lord Mountbatten थे वो last Viceroy थे इंडिया के. Formation of Indian National Congress. अब Indian National Congress बन गया. कैसे बना? Let's read it. The Indian National Congress was formed in 1885 by the Englishman A.O. Hume. So एक Englishman थे जिनका नाम था A.O. Hume. उन्होंने ये Indian National Congress बनाई to unite the people of the country under one common goal. So यहाँ के जो लोग थे उन्हें unite करने के लिए एक ही गोल के अंदर उन्होंने ये कांग्रेस बनाई. The INC Indian National Congress has led country to discuss the problem of the people. So ये जो Indian National Congress थी यहाँ के लोगों की जो भी problems थी उसको discuss करती थी. They put forward the demands of the people through petition. ये जो है लोगों की डिमांड को पेटिशन के द्वारा जो है आगे बढ़ाती थी. मेमोरेंडा एंड स्पीचेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो ये सारी चीज़ों को ये यूज करते थे ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए. दे डिमांडेड द इंडियंस बी अपॉइंटेड ऑन हायर रैंक इन पब्लिक सर्विसेज. सो इनका डिमांड था कि जो भी इंडियंस हैं उन्हें जो है हाई रैंक्स पे बिठाया जाए इन पब्लिक सर्विसेज. Indian National Congress was formed by A.O. Hume and Englishmen when were Britishers in our favor
or they were against us? Explain I. Us. So here you have to explain कि एओड ह्यूम्स एक इंग्लिशमैन था, तो क्या ब्रिटिशर्स हमारे साथ थे या हमारे खिलाफ थे? दिस यू हैव टू एक्सप्लेन. सो यहाँ पे बोला गया कि जो इंडियंस है उन्हें बड़ी पोस्ट पे बैठाया जाए. Ask for the end of racial discrimination and drain the wealth of to Britain. तो यहाँ पे बोला गया कि जो इंडियंस हैं उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है बंद किया जाए. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, मीन्स कि जो इंडियंस थे उन्हें काले लोग कहा जाता था, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो गोरे लोगों में आते थे. तो यहीं पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मीन्स कि काले लोगों को जो है नीचे जॉब्स दिए जाएंगे और जो गोरे लोग हैं उन्हें ऊपर वाले जॉब्स दिए जाएंगे. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के बीच में. तो ये कहा गया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बंद करो और जो इंडियंस हैं उन्हें हायर पोस्ट दो. दिस ग्रुप ऑफ लीडर्स इंक्लूडिंग दादा भाई नरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे जो लीडर्स हैं इन्होंने were known as the moderators. ये जो लीडर्स हैं मॉडरेटर्स कहलाए. And they believed that the British government would consider the demands liberally. और इन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इनकी डिमांड्स को मान लेगी. However, their demands were not met and their way of protest gave rise to extremists. So इनकी डिमांड्स को नहीं माना गया और इसकी वजह से प्रोटेस्ट जो है बढ़ता गया. As a result, more intense agitation followed which were led by Lala Lajpat Rai in Punjab. सो अब जो है क्योंकि जो है रिवोल्ट बढ़ चुका था, जो एजिटेशन था वो भी बढ़ चुका था. कैसे? जब लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्र पाल जो है बंगाल में, ये सब इस रिवोल्ट में शामिल हो गए. टुगेदर दे वर नोन एज लाल बाल पाल. तो लाला का लाल, बाल गंगाधर तिलक का बाल और बिपिन चंद्र का पाल, सो लाल बाल पाल के नाम से इन्हें जाने जाने लगा. दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड रैडिकल्स. इस ग्रुप को रैडिकल्स कहा जाने लगा. द डिमांड इज स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट. उन्होंने कहा कि या तो हमें स्वराज दो या तो हमारी खुद की गवर्नमेंट बनाने का हमें हक दो. दे बॉयकॉटेड इंग्लैंड मेड क्लोथ्स एंड प्रमोटेड इंडियन मेड क्लोथ्स. सो इन्होंने इंग्लैंड के बनाए हुए कपड़ों को बॉयकॉट कर दिया, उन्हें यूज करने से मना कर दिया और इंडियन मेड कपड़े जो थे, इंडिया में जो बने हुए कपड़े थे, उन्हें प्रमोट किया. रिजेक्टेड इंग्लिश स्कूल्स एंड प्रमोटेड इंडियन एजुकेशन. सो इन तीनों ने जो है मिलके जो है ब्रिटिश स्कूल्स को रिजेक्ट किया और इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया. They also abandoned British services and asked people to join their movement. So इन्होंने ब्रिटिश सर्विसेज को अबेंडन किया, उसके खिलाफ गए और लोगों से कहा कि आए और उनके मूवमेंट में भागीदार बने. So here is the picture of Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Now the role of Mahatma Gandhi in freedom struggle. महात्मा गांधी का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में? महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात. सो पोरबंदर गुजरात में ये पैदा हुए थे. गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. इन्होंने इंग्लैंड जाके वहां पे लॉ की पढ़ाई की. ही वॉज नेम्ड मोहनदास करमचंद गांधी आफ्टर हिज फादर. अपने फादर के नाम के ऊपर ही इनका नाम रखा गया था, जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. आफ्टर गेटिंग हिज डिग्री गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ. सो डिग्री मिलने के बाद ये साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने अपने लॉ को प्रैक्टिस किया. Like India, it was a British colony too. So India की तरह वहाँ पे भी ब्रिटिश का राज चल रहा था. There Gandhi witnessed and suffered racial discrimination. तो वहाँ जब गांधी जी गए तो वहाँ पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सफर किया, मीन्स कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव. This is a picture of Gandhi ji at a very young age. According to the famous incident, he was thrown out of his first class coach despite possessing a valid ticket. तो उन्होंने एक वैलिड टिकट दिखाया था फर्स्ट क्लास का, लेकिन फिर भी क्योंकि वो
ब्लैक पीपल में आ रहे थे इसलिए उन्हें उससे निकाल दिया गया, भले ही उन्होंने उसे टिकट दिखाया फिर भी उन्हें वहां से निकाल दिया गया. These incidences were the turning points of his life and shaped his belief in सत्याग्रह. So इस इंसिडेंस के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और वो सत्याग्रह के रास्ते पे चल पड़ी. He successfully led civil rights movements in South Africa on the basis of the principle. उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट स्टार्ट किया अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, and it was in South Africa that Gandhi ji became a Mahatma from Mohandas. और साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी महात्मा बन गए मोहनदास से. In 1915, Gandhi arrived in India from South Africa. So 1915 में जो गांधी जी थे वो इंडिया आ गए साउथ अफ्रीका से. Soon he led 3 early local movements in Champaran, Kira and Ahmedabad. So इन 3 जगहों पे उन्होंने मूवमेंट्स स्टार्ट किए. गांधी was successful in leading all the movements and through सत्याग्रह and non-violence. So सत्याग्रह और non-violence की मदद से उन्होंने सारे मूवमेंट्स जो भी मूवमेंट्स किए थे वो सक्सेसफुल कंप्लीट किए. In 1919 ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉन्च द रॉलेट एक्ट. So 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट एस्टैब्लिश किया और वो था रॉलेट एक्ट, which gave the British government the power to send anyone to jail without trial. So अब इस एक्ट के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स किसी को भी जेल भेज सकते थे बिना किसी ट्रायल के. He launched a nationwide campaign, Rowlatt Act Satyagraha against it, and was even arrested. So उन्हें भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग अरेस्ट कर लिया गया. Gandhi ji is most famous for his philosophy of non-violence that has inspired civil rights leaders around the world. On 13 April 1919, a large crowd of peaceful demonstrators gathered in the park called Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the Rowlatt Act. So Rowlatt Act के खिलाफ बहुत सारे जो इंडियंस थे वो जमा हुए कहाँ पे, जलियांवाला बाग में. दिस इज अ पिक्चर ऑफ जलियांवाला बाग. सो यहाँ पे वो इकट्ठा हुए. A lot of people were killed. This provoked mass anger. और वहाँ पे जो है काफी सारे लोगों को मार दिया गया गन पॉइंट पे, वहाँ की सारी दीवारों को बंद करके और वहाँ पे उन लोगों को मार दिया गया, जिससे जो है लोगों में गुस्सा बढ़ गया. सारी दीवारों को बंद कर दिया गया और हर तरफ से गन पॉइंट पे लोगों को मारा गया. Around the same time, Britain conquered Turkey in 1919 and dethroned the Caliph. So उसी टाइम पे जो ब्रिटेन था उसने टर्की में भी जो है वहाँ के जो राजा थे वहाँ उन्हें जो है डीथ्रोन कर दिया, मीन्स उनके राजपाट से उन्हें हटा दिया. The Indian Muslims considered the Caliph or the Khalifa as their spiritual leader. जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो कैलिफ को अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे. So the defeat led to protests by Muslims in India. अब मुस्लिम्स में भी जो है बहुत ज़्यादा एंगर आ चुका था और वो भी प्रोटेस्ट करने लगे थे. गांधी जी combined these two causes to launch the nationwide protest and demand justice. So गांधी जी ने इन दोनों चीज़ों को आपस में मिलाया और उन्होंने प्रोटेस्ट किया जस्टिस के लिए. Now Gandhi ji launched a non-cooperation movement in 1920 and 1922. So इन्होंने non-cooperation movement स्टार्ट किया था 1920 से स्टार्ट हुआ 1922 तक चला, and it campaign against the wrongs done in Punjab and to the Khalifa. So पंजाब और खलीफा के साथ जो भी गलत किया गया है उसके खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. The non-cooperation movement campaign for the boycott of British services. So ब्रिटिशर्स की जो भी सर्विसेज थी उसको बॉयकॉट करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था. Schools, courts and goods. So ये सारी चीजें बॉयकॉट कर दी गई. It also consisted of the anti-liquor and anti-untouchability movements. So इसमें जो है anti-liquor movement भी स्टार्ट हुआ और anti-untouchability छुआछूत का जो मूवमेंट है उसको भी स्टार्ट किया गया. It promoted Indian schools, native codes and the spinning of khadi. So जिसकी वजह से इंडियन स्कूल्स को स्टैब्लिश किया गया
नेटिव कोट्स बनाए गए और खादी का यूज स्टार्ट किया गया। खादी इज अ क्लोथ स्पन एट होम यूजिंग चरखा। सो खादी एक कपड़ा है जो घर पे बनाया जा सकता है चरखे की मदद से। It was encouraged to secure self-sufficiency in Indian households. So लोगों से कहा गया कि आप खुद से सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप अपनी चीजों को घर पे ही कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, अब्दुल गफर खान एंड मेनी अदर। सो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, हेल्प गांधी लीड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इन लोगों ने हेल्प की गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में। However, in 1922, when the people became violent at Chaura Chauri in Uttar Pradesh and killed 22 policemen, Gandhi ji immediately called off the movement. So 1922 में लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई चौरा चौरी में उत्तर प्रदेश में, और उसमें 22 पुलिसमैन को मार दिया गया। तो जिसकी वजह से गांधी जी ने तुरंत ही इस मूवमेंट को बंद कर दिया। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी कैरिड आउट अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क। सो इस मूवमेंट के बाद गांधी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। He established the famous साबरमती आश्रम। उन्होंने साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश किया। On 21 March 1930, Gandhi started the civil disobedience movement. अब 21 मार्च 1930 को उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। गांधी मार्च्ड on foot with some people from his ashram in Sabarmati in Ahmedabad to seashore near the Dandi. So वहाँ पे लोग गांधी जी ने अपने आश्रम से डांडी तक पैदल मार्च किया, कुछ लोगों को इकट्ठा करके। दिस वाज कॉल्ड द डांडी मार्च, और इसे ही डांडी मार्च कहा जाता है। इट वाज फॉलोड बाय लार्ज स्केल एंटी लिकर, एंटी अनटचेबिलिटी एंड चरखा कैंपेन, और ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ गई। वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज अ मेन फीचर ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट का जो मेन फीचर था वो था वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दिस मूवमेंट नेशनल यूनिटी हैड स्ट्रेंथन्ड। तो जैसे ही मूवमेंट खत्म होने वाला था, जो नेशनल यूनिटी थी वो बढ़ चुकी थी, लोग आपस में स्ट्रेंथन हो गए थे यूनिटी की तरफ। On 8 August 1942, the Congress under the leadership of Gandhiji launched the Quit India movement. So 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने गांधी जी के लीडरशिप के अंदर एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। He raised the slogan "Do or Die." उन्होंने एक स्लोगन दिया जिसका मतलब था "Do or die" means करो या फिर मर, meaning to fight to get freedom or die in that attempt. तो इसका मतलब था कि या तो फ्रीडम के लिए लड़ो या तो उस फ्रीडम को अचीव करने में तुम मर जाओ। Within a few hours of the declaration, thousands of Congress leaders were arrested. और इस डिक्लेरेशन के थोड़ी देर बाद बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। It was followed by an unprecedented uprising of the people that surprised the Britishers. और इसके बाद बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हो गए जिससे ब्रिटिशर्स बहुत सरप्राइज फील करने लगे। The Indian National Army, Netaji Subhash Chandra Bose was also a prominent Congress leader. So नेताजी जो है यहाँ इस इंडियन नेशनल आर्मी के एक लीडर थे, एंड ही फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फौज। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया या फिर आज़ाद हिंद फौज बनाया टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया। इंडिया से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसा किया। द आर्मी ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द नॉर्थ ईस्ट। जो आर्मी थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की नॉर्थ ईस्ट। द मेंबर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, दो दे फेस्ड ह्यूज लॉसेस, दे वर रिस्पेक्टेड एज नेशनल हीरोज। सो आज़ाद हिंद फौज के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उन्हें नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें नेशनल हीरोज के रूप में आज भी रिस्पेक्ट मिलती है। द स्लोगन "गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम" वाज रेज्ड बाय नेताजी। तो नेताजी ने एक
स्लोगन दिया और वो क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में खत्म हो चुकी थी। दिस हैड वीकेंड द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है कम पड़ चुकी थी, वीक हो चुकी थी। द ब्रिटिश रियलाइज दैट इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू कैरी ऑन देयर रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स को ऐसा लग गया था कि अब वो इंडिया पे रूल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया अचीव फ्रीडम, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपना फ्रीडम अचीव कर लिया। इंडिया वॉज पार्टीशन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया को दो पार्ट्स हो चुके थे, क्या थे वो, इंडिया और पाकिस्तान। पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister and Dr. Rajendra Prasad became the first president of India. So पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के। AI technology has enormous potential to shape India's economic and national security future. Now let's quickly revise what we have learned here. In 1885, the Indian National Congress was formed by the Englishman A.O. Hume, and Mahatma Gandhi led the non-cooperation movement, civil disobedience movements, and Quit India movement. Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, and C. Rajagopalachari were the leaders who helped Gandhiji lead the non-cooperation movement. Netaji Subhash Chandra Bose formed the Indian National Army. Now let's answer some of the questions. Differentiate between moderators and radicals. So this you have to find out and write it here. Now write a note on Gandhiji's early life. गांधी की जो early life थी, उन्होंने कहाँ से education ली, उन्होंने कहाँ पे law की practice की. These all you have to write down here, children. Now explain the ideals of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के क्या क्या ideas थे? He was against violence, so he started various non-violence movement. So you have to explain these ideas. Why and how was a non-cooperation movement launched? Non-cooperation movement कैसे launch किया गया और क्यों? Why did Gandhiji launch the Dandi March and how was it launched? So Gandhiji ने Dandi March क्यों start किया था? It was started to break the salt law. And how it launched, this you have to write. Now, who formed the Indian National Army and Azad Hind Fauj, and why was it formed? So, Azad Hind Fauj को किसने बनाया और क्यों? Why was the slogan launched by Netaji Subhash Chandra Bose? What was the slogan launched and why was it significant? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Give me blood, I'll give you freedom. So ये नेताजी ने बोला था. क्यों बोला था? क्या significance है? That you have to write. And write a short note on Rowlatt Act. So Rowlatt Act क्या था? For this, you have to write down a short note. So children, you have to read the chapter again and then you have to answer the given questions here. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.